35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डालते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि सईदाबाद के पास से है। सईदाबाद में जो है एक स्कूल है जहां पर मोर देन 90% मुस्लिम बच्चों की स्ट्रेंथ है। मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जिसमें कुछ थोड़े बहुत बच्चे हमारे हिंदू भाई के बच्चे भी वहां पर तालीम हासिल, लेकिन बाई मिस्टेक, क्योंकि वो स्कूल में जो है एक दीनी क्लास भी होती है जहां पर होमवर्क भी दिया जाता है। हर बच्चे को ये कहा जाता है कि तुम ये कलमा याद कर कर आना, यानी होमवर्क में ये दिया जाता है। इत्तेफाकी तौर पर एक मासूम बच्चा जो कि सेकंड क्लास का स्टूडेंट है, जो कि हमारे हिंदू भाई का बच्चा है, उस बच्चे की डायरी में भी यही लिखा गया था, जिसको लेकर कुछ लोग सियासत करने लगे, हिंदू मुसलमान के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिशें करने लगे। बाय मिस्टेक हो जाता है, इसमें कोई गलत वाली बात भी नहीं है। मासूम बच्चा है और टीचर जो है मोर देन 90% स्ट्रेंथ जो है मुस्लिम बच्चों की है, जिसमें से बच्चे की डायरी में गलती से लिख दिया, लेकिन उसको लेकर जो है कुछ सियासतदान आकर अपने भजिए तलने लगे। वहीं पर चारमीनार के डीसीपी किरण खेरे भी मौके वारदात पर पहुंचे, वहां का जायजा लिए और उन्होंने खुद कहा कि भाई ये जो है बाय मिस्टेक हुआ है, इसको लेकर कुछ अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया पर इसको वायरल करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको वायरल करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जानबूझकर नहीं किया गया, इत्तेफाकी तौर पर ये हुआ है। तो आइए खबर आगे। I have recorded what you are telling right now. It is mandatory and it is, wait, let me talk. And it is mandatory on every children's book. Then you should also write that Bhagavad Gita is mandatory. Wait, excuse me. पहले भी लिखा था strike off क्या है previous paper में. I am not going to leave this name. मुत्तम क्या किस्सा? It is not mandatory for. It is not mandatory for us. Get every diary, each and every diary. Yes. Anything like that? No. Then actually teacher. రాయడమే తప్పు, రాయొద్దు. ఎందుకు రాస్తారు? by mistake it happened. ఎందుకు రాస్తారు? బై మిస్టేక్ ఎట్లా రాస్తారు? బుర్ర ఉండి కావాలని బై మిస్టేక్ ఎట్లా రాస్తారు? It's your. మార్నింగ్, నా పేరు సుప్రియా గౌడ్. మా నెఫ్యూ అంటే మా అక్క వాళ్ళ బాబు స్కూల్ నుంచి నేను పికప్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళినుండే అనమాట. స్కూల్కి వచ్చిండో, ఇంట్లో కూర్చుండో, డైరీ చూపించిండో హోంవర్క్ చేయాలని చెప్పేసి. డైరీ చూపిస్తే ఇక్కడ ఏదో రాస్తుందని చూపిస్తే చూస్తే రీడ్ 1, 2 కల్మా, ఇంకా రీడ్ ఫతే అని చెప్పేసి కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట డైరీలో. నాకు అర్థమైతలే అసలు ఒక అబ్బాయికి 6 ఇయర్స్ బాబు, సెకండ్ క్లాస్ బాబుకి ఈ ప్రాక్టీసెస్ అంది ఎందుకు చేపిస్తున్నారు మీరు? స్కూల్ అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి. రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్స్లో అసలు స్కూల్కి ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇది కనెక్షన్ లేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎడ్యుకేషన్, జస్ట్ గివ్ దట్. మీరు ఇండైరెక్ట్గా ఇట్లా ప్రాక్టీసెస్ చేసి మేము కావాలని రాయలేదు, మేము బై మిస్టేక్ రాసినామంటే ఎంతవరకు తీసుకుంటాం? ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఒకసారి రాసిర్రు, రీడ్ 1, 2 కల్మా అని రాసిర్రు, అది స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసిర్రు. ఓకే, పర్లేదు, నేను చూడలేదు, నేను అది వదిలేసిన. ఇప్పుడు ఈ రోజు కూడా రాసిర్రు, ఈ రోజు కూడా రాసి ఫతే చదివియండి, అదేదో సబ్జెక్ట్, ఆ పేరు నాకు కూడా తెలియదు, ఆ సబ్జెక్ట్ పేరు వేసి రాసి ఫతే చదవండి అని చెప్పి రాస్తున్నారు. అసలు వాడి ఏజ్ ఏంది, వాడి రిలీజన్ ఏంది అంటే అదొక టైప్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ వాష్ లాగానే ఫీల్ అయినా. నేను వెళ్ళి అడిగితే ఆ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ ఏమని చెప్తుంది, ఇది ఒక రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్, ఇది అందరు స్టూడెంట్స్కి మ్యాండేటరీ అని చెప్తున్నారు. అట్లా మ్యాండేటరీ? యు ఆర్ లిటరలీ ఫోర్సింగ్ థింగ్స్ టు రైట్. అసలు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రాసింది రీడ్ ఇగో డేట్, ఈరోజుదే డేట్, ఇది ఈరోజుదే ఇక్కడ రాసింది. మళ్ళీ నేను మొత్తం డైరీ మొత్తం చెక్ చేస్తే మళ్ళీ నాకు ఇది ఒకటి కనిపించింది. ఇది ఆల్రెడీ స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయింది. రీడ్ 1, 2 కల్మా అని చెప్పేసి ఇట్లా ఇంకా ఎంతమంది పిల్లల బుక్స్లో రాసినారో తెలియదు. ఓకే, మీరు అంటారేమో అదొక సబ్జెక్ట్, వీళ్ళకి ఆ సబ్జెక్ట్ ఉంది అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ఏ పిల్లలు అయితే తీసుకున్నారో ఆ పిల్లలందరినీ డైరీ సపరేట్ పెట్టి ఇవ్వండి, వీళ్ళ డైరీ సపరేట్ పెట్టి ఇవ్వండి. ఇక్కడ క్లియర్గా లియాన్స్ కృష్ణ అని పేరు కనిపిస్తుంది. ఎట్లా రాస్తారు? మళ్ళీ ఫస్ట్ అడిగితేనేమో రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ ఫర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ అన్నది. సెకండ్ టైం అది ఎవరైతే రాసిర్రో ఆమెనే వచ్చి నేను బై మిస్టేక్ రాసిన అంటారు. అంటే మీరు గడికి పేరు ఇట్లా చేంజ్ చేయడం అసలు కరెక్ట్? అది వాంటెడ్గానే రాసినట్టు నేను పర్సనల్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. मैं मोहम्मद उबैद पटेल, मैनेजिंग डायरेक्टर सक्सेस स्कूल। ये एक छोटा इशू हो गया हमारे पास। एक टीचर उसमें कुछ रीड करो बोल के लिखे गए थे, उसको छोटी चीज़ को बड़ी कर दिए। और वो क्या है, फिर पेरेंट ही आए, ठीक है सर टीचर को मत निकालिए, टीचर से पूछा कि गलती का होगा, 20 बच्चों में एक बच्चे को लिख दिया, उन्होंने कोई गलती से लिख दिए, ठीक है, आप टीचर के पेट पे मत मारिए, मत निकालिए बोल के बोले। टीचर को हम ऑलरेडी टर्मिनेट कर दिए, निकाल दिए, उनका लेटर भी है। अब क्या है, पेरेंट फिर आके हमारे से बोले
ठीक है सर, जो भी हो गया बोल के बोले। अब ये छोटी चीज़ को क्या है, लोग बहुत बड़ा इशू कर रहे हैं, ये इशू गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पुराने शहर के सैदाबाद क्षेत्र में एक स्कूल के अंदर जो कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को जबरन कलमा पढ़ने के लिए कहा गया स्कूल मैनेजमेंट ने। यह बहुत ही शर्म की बात है। तेलंगाना में यहां पहला केस नहीं है, इससे पहले भी अनेकों केसेस इस प्रकार के हो चुके हैं तेलंगाना राज्य में। लेकिन कल जिस प्रकार से उस 2 साल के मासूम बच्चे के पेरेंट्स ने जब स्कूल में जाकर उन मैनेजमेंट से जब क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा कि आप कैसे मेरे बच्चे को, मेरे हिंदू बच्चे को कलमा पढ़ने के लिए प्रेशर डाल सकते हो, तो स्कूल मैनेजमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। यहां सैदाबाद क्षेत्र असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में आता है और ये कि पूरी की पूरी इन लोगों ने प्लानिंग करके रखी है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, चाहे वो कॉलेज में हो या 10वीं कक्षा में हो या 9वीं कक्षा में हो, सबका इस्लामीकरण करना। क्योंकि इनकी सोच है भारत में रहकर भारत से गद्दारी करना, भारत में रहकर भारत से गजवा हिंद करना, भारत में रहकर इनकी ये सोच है। तो ये सोच को मजबूत करने वाला असदुद्दीन ओवैसी, मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे ही पार्लियामेंट क्षेत्र में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, यहां तक के छोटे मासूम 2 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को तो नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आज तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? किसी भी राज्य में जब मुसलमानों पर कुछ हो जाता है, चाहे वो आतंकी मुसलमान क्यों ना हो, चाहे वो आतंकी मुसलमान का इनकाउंटर क्यों ना हो जाता है, तो तुरंत मीडिया में आकर असदुद्दीन ओवैसी पुकारना चालू करता है। तो आज उसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में, असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में एक 2 साल के हिंदू मासूम बच्चे को कलमा पढ़ने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने जब प्रेशर डाला, तो आज असदुद्दीन ओवैसी यहां सवाल क्यों नहीं उठा रहा है कि वो स्कूल पर प्रतिबंध लगे, वो मैनेजमेंट के ऊपर पुलिस केस हो, उनको जेल भेजा जाए? वो नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसी के लोग हैं जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं हमारे कलेक्टर साहिबा एवं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से स्कूलों के अंदर हिंदुओं को जबरन अगर कलमा पढ़ाने का अगर प्रयत्न किया जाएगा, उन स्कूलों पर कार्रवाई हो, उन स्कूलों को सीज किया जाए और भविष्य में इस प्रकार का कोई कांड ना हो, उस प्रकार से कोई कानून बनाए, ये मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से निवेदन करना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं मेरे हिंदू भाई बंधुओं से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को स्कूल डालने से पहले यहां देख लो कि वो स्कूल के अंदर कौन है। कहीं कोई बुरके वाली तो नहीं है, कहीं कोई टोपी वाला तो नहीं है जो हमारे बच्चों को जबरन कलमा पढ़ाएगा। थोड़ा यह ध्यान रखकर आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में डालिए, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। स्टूडेंट्स है, उसमें ऑल स्टूडेंट्स आर मुस्लिम, बट एक बच्चा वहाँ पे हिंदू स्टूडेंट है। उसके अंदर जो स्कूल टीचर है उसने बाय मिस्टेक वहाँ पे लिखा गया इन होमवर्क दैट उन लोगों ने प्रॉपर्ली कलमा पढ़ के आना है, जो एक स्कूल पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी का वायलेशन है। ये स्कूल जो है सिर्फ नॉन रिलीजियस टीचिंग के लिए यहाँ पे सिखाना चाहिए, लेकिन उसमें रिलीजियस टीचिंग को भी इन्वॉल्व किया गया, उसकी तरफ से वायलेशन हुआ। उसके बाद में इमीडिएटली जो पेरेंट्स हैं उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट के पास अप्रोच हुए और उन्होंने उसमें कंप्लेंट दिया। इमीडिएटली जो स्कूल मैनेजमेंट है उनकी तरफ से एक्शन लेते हुए स्कूल टीचर को यहाँ पे टर्मिनेट भी किया गया बिकॉज उसने जो वायलेशन किया। बल्कि ये वायलेशन फर्स्ट टाइम हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया, लेकिन फिर भी ये गलत चीज़ है, उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी तरफ से इसमें एक्शन लिया गया। तो इसके अंदर जो है ऑलरेडी पेरेंट्स जो है उन्होंने एक रिटर्न यहाँ पे लेटर भी दिया, उसके अंदर उन्होंने बताया कि इसमें दे आर सेटिस्फाइड, जो भी स्कूल टीचर की तरफ से जो भी एक्शन लिया गया, मैनेजमेंट की तरफ से जो एक्शन लिया गया उसमें सेटिस्फाइड है। तो अभी इसमें किसी तरह कोई इश्यू नहीं है। पुलिस के पास भी
पेरेंट्स की तरफ से या किसी तरह से कोई कंप्लेंट नहीं आया। इसके आगे यदि कोई कंप्लेंट आता है तो डेफिनेटली पुलिस की तरफ से इसमें लीगल हमें ओपिनियन लेते हुए उसमें जो भी लीगल एक्शन होगा उसमें भी लिया जाएगा। तो अभी तक जो है पुलिस की तरफ से प्रॉपरली इसमें इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो मैं सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी एक इंसिडेंस हुआ डेफिनेटली ये गलत इंसिडेंस था, एक स्कूल का एक एजुकेशन पॉलिसी का वायलेशन था और उसके अंदर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से भी एक प्रॉपरली एक्शन लिया गया। मैं सभी लोगों को सक्सेस स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सक्सेस स्कूल में ये कोई माइनॉरिटी स्कूल नहीं है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे जो बच्चे एक साथ मिलकर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं और जो टीचर्स है और जो मैनेजमेंट है उसमें भी सारे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी लोग मिलकर यहाँ पे मैनेजमेंट में। तो इसमें एक स्कूल टीचर की तरफ से एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे गलती हुआ तो उसके अंदर इमीडिएटली मैनेजमेंट तरफ से एक्शन लिया गया और बाद में भी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रहेगा वो भी किया जाएगा। तो मैं सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ, आप किसी भी तरह का सोशल मीडिया पे किसी भी तरह के रूमर्स ना फैलाएं। पुलिस की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से और स्कूल डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉपरली इसमें एक्शन लिया जा रहा है। तो आप उसमें किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट होगा तो डेफिनेटली उसमें भी आगे हम इंक्वायरी करेंगे। ऑलरेडी टीचर अपोलॉजिस्ट कर ली, उसके बावजूद भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में आपके क्या हो रहा है? तो अभी कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। तो उसके बारे में पुलिस की तरफ से प्रॉपरली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बंदोबस्त भी यहाँ पे लगाया जाए और इसमें ऑलरेडी हमने 30+ लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया। यहाँ पे जो भी सिचुएशन है वो काफी तरह से पीसफुल है। थैंक यू। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपके ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर 9246209197 पर रब्त करें।